Welcome back. So last class we have started with the polymorphism and abstraction. So can anyone just tell me what exactly polymorphism is? Okay, so it is an ability of an object to have multiple behaviors and change it based on situation. What is method overloading, Pushkar? हम्म हम कितने भी मेथड लिख सकते हैं, बट कैसी मेथड्स? इंस्टेंस। ओके, बट उसमें क्या होना चाहिए? एक क्लास में तो हम जितने चाहिए उतने मेथड लिख सकते हैं, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग देयर इज समथिंग स्पेसिफिक थिंग्स आर देयर। मेथड का नाम सेम होना चाहिए। वी डिफाइन मल्टीपल मेथड्स। ओवरलोड करना मतलब काम ज्यादा देना, राइट? सो ओवरलोड, वी हैव द सेम नेम, मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम, डिफरेंट सिग्नेचर, that is what method overloading. Can we overload main method, static method, private method, main method, final method? Yes. Constructor, can we overload constructor? Yes. कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर, Yes, कर sir. सकते हैं कि नहीं? ओवर राइड की नहीं बात कर रहा, ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो तुम, लिख सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग ओनली, राइट? कंस्ट्रक्टर का नाम कैसे होता है? सेम ही होता है ना। कंस्ट्रक्टर का नाम कैसे होता है? क्लास जैसे। सो दैट इज ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर हम ओवरलोड कर सकते हैं। कल लिखा नहीं मैंने, लिखा होगा यार मैंने। ओके, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, माइरिश? यूजफुल नहीं है, नीडेड नहीं है। ओके, so method overriding means we define a method in the subclass as of parent class method name, same signature, same return type, same or more relaxed access specifier. So if someone is asking you why are we doing this method overriding, so you can tell that if we are not happy with the parent class implementation, we need something else, some extra features, then we override the method, right? Can you override final method, Diksha? नहीं कर सकते। ओके, कैन यू ओवरराइड प्राइवेट मेथड? चलो नहीं, नहीं कर सकते। सो वी कैनॉट ओवरराइड प्राइवेट मेथड, फाइनल मेथड। कैन वी ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड, शाश्वती? सॉरी, शाश्वती बोल रहा हूँ, श्रावणी। यस, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर मेंट टू बी ओवरराइड, तो हम उसको और देखेंगे आज। ठीक है, व्हाट इज कॉन्क्रीट क्लास, पुष्कर? So class which is created without abstract keyword and which contains only concrete methods. What is abstract method? Without method body and abstract keyword. So where can we write abstract methods, Marish? Where can we define abstract methods? Only abstract class and interface. We can define abstract methods inside the abstract class or interface. What all things we can write inside an abstract class, Pushkar? एक abstract class के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंस मेंबर, स्टैटिक मेंबर्स,
Okay, abstract methods. Everything that we write as part of a concrete class, we can write that inside the abstract class. Plus, if you want, you can write abstract methods. Is it mandatory to write abstract methods? No. But abstract class बनाया तो abstract method लिखो. Technically नहीं लिखा तो चल जाएगा, but logically you should write, right? What is the point of creating a abstract class then, if you are not writing abstract methods? ठीक? Can we create an object of an abstract class, Ayan? कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. abstract क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते डायरेक्टली, राइट? इंटरफेस का abstract class and interface both are incomplete. तो इनकम्प्लीट है तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. सो इफ यू वांट, कैन वी राइट कंस्ट्रक्टर इनसाइड abstract क्लास? कैन यू राइट abstract क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं? तो उसका कंस्ट्रक्टर कैसे चलाओगे आप? So you have to create a concrete subclass of that particular abstract class, parent class. Then you create object of child class. From that subclass of constructor, they will be called to the superclass constructor. What is multiple inheritance, Meresh? Inheritance. So if one class tries to reuse code from more than one classes, that is something called as multiple inheritance. Is it supported through concrete classes? Is it supported through classes? It is supported through interfaces. Why it is not supported through classes? Subclass will get confused which members to access. So is multiple inheritance supported through abstract class? How? Abstract class, only abstract class I'm talking about. Yes, Pushkar. Is multiple inheritance supported through abstract classes? He's saying yes. So you tell me he is saying yes, correct or not? It is supported through interfaces, but is it supported through abstract classes? Iris? Yes, no? He said yes. It is not supported through abstract classes. Why it is not supported? So abstract class में आप non static या instance member भी लिख सकते हो. That's the reason it is not supported, because subclass will be having a confusion which members to access, which constructor to call, right? हाँ, वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. abstract क्लास कब यूज करना चाहिए, इंटरफेस कब यूज करना चाहिए. मोस्टली हम इंटरफेस यूज करेंगे, abstract क्लास भी यूज करेंगे, बट नॉट मच. मोस्टली हम इंटरफेस यूज करेंगे, बट abstract classes are also used. So why we have to go with interface, why we are not going with abstract class, that we will understand today. Okay, I think we are good with this. Okay, now very important, whenever we are creating subclass, now what are the different combinations I told you about class inheritance? One class can extend how many classes? Only one class, right? What about interface? One interface can extend many interfaces. One class can implement many interfaces, that you know, right? अब मुझे बताओ, abstract class का subclass कौन हो सकता है? Who can be the subclass? एक abstract class हो सकता है
दूसरा कॉन्क्रीट क्लासेस। अब मुझे बताओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा उसका चाइल्ड क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दोनों में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं राइट। ये पहला केस। दूसरा केस है कि मेरा सब क्लास एक कॉन्क्रीट क्लास है, मेरा सब क्लास कॉन्क्रीट क्लास है, तो आपको ये भी पता है कि जो पेरेंट का है वो चाइल्ड का हो जाता है इनहेरिटेंस। अब मेरा पेरेंट क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और सब क्लास है कॉन्क्रीट। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ मेथड्स है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। सो इज देयर विल बी एनी प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड क्लास? समझो फिर से एक बार, आपके पास एक पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें दो तीन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, और मेरा एक दूसरा एक कॉन्क्रीट सब क्लास है, उसमें कुछ नहीं है। सो हु इज पेरेंट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। चाइल्ड क्लास इज कॉन्क्रीट क्लास। अब मेरा क्वेश्चन है कि चाइल्ड क्लास को कोई दिक्कत होगी क्या इससे? इफ यू नो द इनहेरिटेंस यू कैन टेल मी। कौन एक्सेस नहीं कर पाएगा? एक्सेस मतलब वो इनहेरिट हो जाएगी इसके पास, इनहेरिट हो जाएगी ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी। हाँ, तो वही प्रॉब्लम है, तो एब्स्ट्रैक्ट की मेथड कॉन्क्रीट में आ गए तो वो he will start crying, I cannot contain these methods. Subclass will start giving errors that I cannot contain abstract methods. तो एक तो abstract class की abstract method हटा दो, हुँ? दूसरा ऑप्शन, एक तो सब क्लास को abstract बनाओ, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि जो कॉन्क्रीट क्लास है उसे वो मेथड्स ओवरराइड करना पड़ेगा, तो ओवरराइड करेगा तो वो बॉडी देगा। तो मुझे बताओ इस केस में अगर मेथड ओवरराइड करेगा चाइल्ड क्लास के अंदर तो मेथड किसकी कॉल होगी? चाइल्ड क्लास की। किसकी कॉल होगी? चाइल्ड क्लास की। परफेक्ट। अब मुझे बताओ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम कॉल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, तो कॉल किसकी होगी? सब क्लास की होगी, चाइल्ड क्लास की होगी। सो अंडरस्टैंड दिस। ठीक। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सब क्लास कौन हो सकता है? एक तो परफेक्ट। सो व्हेन वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या कॉन्क्रीट क्लास से स्टार्ट करते हैं, लेट्स व्हेन वन कॉन्क्रीट क्लास extends another abstract class. So what is the problem? Then it is mandatory, किसकी बात हो रही है? एक कॉन्क्रीट क्लास किसे एक्सटेंड कर रहा है? abstract क्लास को। Then what is mandatory? To override which methods? All abstract methods, all abstract methods from abstract class. Otherwise, you'll have compile time error. क्या है? अगर एक कॉन्क्रीट क्लास एक्सटेंड कर रहा है दूसरे abstract क्लास को, दूसरे abstract क्लास को, then it is mandatory to override all abstract methods from abstract class. Why it is necessary? As per the inheritance. जैसे इनहेरिटेंस आपने डिसाइड किया, abstract methods will be inherited in subclass, then it will give city to city. अब ये समझ में आ रहा है लॉजिक आपको?
क्योंकि इनहेरिटेंस की वजह से वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी सब क्लास के पास आ गए। तो सब क्लास तो आपका कॉन्क्रीट है, सब क्लास तो कॉन्क्रीट है, तो वो तो बोलेगा एक तो तुम एब्स्ट्रैक्ट मेथड हटाओ या सब क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, वो तो नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, मेथड को ओवरराइड करो। तो हम ये याद रखेंगे। नाउ little change, when one abstract class extends another abstract class, then it is optional to override all abstract methods. That's it. Why it is optional? Why it is optional? अरे abstract तो abstract hold कर सकता है, abstract class can hold abstract methods, right? Make sense? Let's go to the ID. आई एम राइटिंग एवरीथिंग इनसाइड द मेन मेथड, क्योंकि मुझे मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करना होता है, इसलिए मैं मेन मेथड कैलकुलेट करूँ, इसका स्कोप उधर ही होता। सो आई एम क्रिएटिंग वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लेट्स से पेमेंट, right? Now I'm trying to accept the payment. So for that I am going to accept the amount. ये abstract class के अंदर है, this is inside the abstract class. Can we write this? What is the type of variable? Instance variable. ठीक, ये मेथड है मेरे पास। कैसी मेथड है ये इंस्टेंस वेरिएबल, ये इंस्टेंस मेथड। आई विल अंडरस्टैंड द व्हाई क्वेश्चन एज वेल। नाउ ये कुछ व्हेन आई स्टार्टेड द इम्प्लीमेंटेशन मुझे कुछ लॉजिक पता था, अब कुछ लॉजिक मुझे नहीं पता है कि हाउ आई एम गोइंग टू वैलिडेट द क्रेडेंशियल्स। सो पब्लिक void or public abstract void validate। वैलिडेट का मतलब मुझे कैसे पेमेंट वैलिडेट करना है, क्रेडेंशियल कैसे वैलिडेट, आई डोंट नो दैट टुडे। अब जो मुझे पता था वो लॉजिक लिख लिया मैंने। अब पेमेंट वैलिडेट कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, ये मुझे नहीं पता है, तो मैंने उसको एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दिया। ठीक, क्लियर यहां तक? क्या किया मैंने, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, उसके अंदर कुछ लॉजिक लिखा है जो मुझे पता था, और कुछ मेथड से मैंने अभी मुझे नहीं पता है हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसेस दैट, तो मैंने क्या किया, उसको आधा छोड़ के एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दिया। नाउ लेटर ऑन, अब इसका तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आप। कैन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास? You cannot create, right? I'm going to create concrete class now. I'm going to create a simple concrete class. अब पेमेंट कैसे आ सकता है? क्रेडिट कार्ड पेमेंट। दूसरा, व्हाट इज अनदर वे? डेबिट कार्ड बोल सकते हो आप। दूसरा आपके पास यूपीआई हो सकता है। ठीक, अब मुझे बताओ,
जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करें तो क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन का लॉजिक अलग होगा, डेबिट कार्ड वैलिडेशन का लॉजिक अलग होगा, यूपीआई का अलग होगा, राइट? सो टुडे आई डोंट नो, अब देखो व्हाट यू सी टुडे इज वैलिडेट और प्रोसेस पेमेंट, वैलिडेट और प्रोसेस पेमेंट। अब क्रेडिट कार्ड वैलिडेट करना, उसका पेमेंट प्रोसेस करना, ये अलग होगा, डेबिट कार्ड में भी अलग होगा, यूपीआई में भी अलग होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? So what I did just now, hmm, so आप बोल सकते हो कि ये सारा लॉजिक एक ही जगह पर लिख लेते हैं, ये अलग अलग जो पेमेंट प्रोसेस करना है तो मैं इफ एल्स लिख लेता या स्विच लिख लेता और उसके अंदर में लॉजिक लिख लेता। आप क्या करते? इफ द पेमेंट टाइप इज क्रेडिट इक्वल टू क्रेडिट कार्ड, डू दिस। इफ द पेमेंट टाइप इज, डू दिस। ऐसे कुछ आप डायरेक्टली लॉजिक लिख सकते हो। बट मैंने आपको बताया था कि सॉलिड नाम का मैंने कुछ बताया था आपको, डू यू रिमेम्बर सॉलिड? सॉलिड याद है? सो ये सॉलिड डिजाइन पैटर्न्स, डिजाइन प्रिंसिपल बोल सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि अब अगर किसी ने 20-25 साल या 10 साल जो भी काम किया इंडस्ट्री में, उसको पता होगा ना कि आप क्लास इस तरीके से मत क्रिएट करो, इस तरीके से ऑब्जेक्ट मत क्रिएट करो। ऐसे करोगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू इन लॉन्ग टर्म। तो व्हाट ही इज टेलिंग योर एक्सपीरियंस, इफ यू डू दिस योर प्रॉब्लम्स विल बी लेस। आपका कोड मेंटेनेबल होगा, स्केलेबल होगा, इफ यू फॉलो दिस। इफ यू डोंट फॉलो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब लेट से अभी आप वीकेंड पे कोई जाके आया, तामिनी घाट जाके आया, उसने बताया कि ये घाट रास्ता खराब है, आपने फिर भी नहीं सुना, देखते क्या है, फिर क्या होगा? उधर जाके फंस गए उधर। तो सिमिलरली इफ यू डोंट फॉलो दिस प्रिंसिपल्स इन प्रोग्रामिंग एज वेल, सॉलिड एस स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। एस स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्स, एस फॉर सॉलिड, हाँ बराबर, एस फॉर सॉलिड। एस स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ इसको क्यों याद रखना चाहिए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेट्स से कोई आप रेस्टोरेंट जाते हो, कि मतलब एक अच्छा खासा सेटल रेस्टोरेंट है, तो उसमें क्या होगा? देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल, राइट? अब लेट्स से टुमारो, लेट्स से संदीप सर ने रेस्टोरेंट चालू किया, पहले दिन संदीप सर ही झाड़ू लगाने भी, शटर ओपन करने को संदीप सर हैं, ऑर्डर लेने को भी, खाना बनाने को भी, बिल जनरेट करने को भी, किचन में कुछ कम पड़ गया तो दुकान से लेके आने के लिए संदीप सर ही है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बर्तन धोने के लिए भी सर ही है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दैट रेस्टोरेंट? कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं? एक ही। एक, हाँ मतलब थोड़ा एक ग्रुप होगा जो भी बहुत भूखा होगा, कि अभी कुछ मिलने नहीं वाला, ये जंगल में है कुछ, तभी उधर कोई रुकेगा, अदरवाइज हाँ, जिसको टेस्ट पसंद है या जिसके पास बहुत ही दुनिया भर का टाइम है वो रुक जाएगा। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस केस? ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंगल पर्सन पे है। तो आप क्यों मतलब चाहते हो कि आपका क्लास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चले? मोस्टली आप क्या करते हो, जो भी काम आ गया डाल दो उस क्लास के अंदर, जो भी काम आ गया, जो भी लॉजिक नया आ गया, मेथड आ गया, डाल दो उस क्लास के अंदर। सो इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड हैव योर क्लास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे क्या होगा? व्हाट इज द बेनिफिट? नाउ थिंक ऑफ अनदर रेस्टोरेंट, वहां पर काउंटर पे एक बंदा है बिल जनरेट करने के लिए, राइट? सो देयर आर डिफरेंट पीपल। तो उससे फायदा क्या होता है? व्हाट इज द बेनिफिट?
एक ऑर्डर लेने के लिए है, एक खाना सर्व करने के लिए है, किचन में कोई अलग बंदा है, कोई किचन में कुछ शॉर्टेज हो गया तो लेके आने के लिए दूसरा बंदा है. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? सर्विस फास्ट होगी, स्केलेबल होगा, आप ज्यादा लोगों को सर्व कर सकते हो, मेंटेन मतलब स्केल ज्यादा हो सकता है. So that is the benefit of dividing the responsibility. Dividing the responsibility. So we should do that. अभी मैंने क्या किया, वही कुछ तो किया मैंने. क्या किया मैंने अभी एक ही क्लास के अंदर पेमेंट प्रोसेसिंग का लॉजिक लिखता, यूपीआई भी उधर, क्रेडिट कार्ड भी उधर, डेबिट कार्ड भी उधर, तो उससे क्या होता? तो वही कर रहे हो आप, एक ही क्लास को बर्डन दे रहे हो आप, और अल्टीमेटली योर सिस्टम इज बाउंड टू फेल. तो ये एक मैंने किया. अभी आपको डिजाइन पैटर्न में बस आपको हल्का सा बता रहा हूँ, लेटर ऑन यू विल एक्सप्लोर, बट अभी के लिए मैं एस फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या है, आपने क्या करना चाहिए, आपको आपके क्लास को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, आपने एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए उसको. व्हाट इज ओ स्टैंड्स फॉर? ओपन क्लोज प्रिंसिपल. सो व्हाट इज दिस ओपन क्लोज प्रिंसिपल? नाउ लुक एट दिस, व्हाट यू सी. अगर आपने देखा हो इसको, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेल यू ऑल दिस प्रिंसिपल्स, बट मैं ठीक है, चलो अभी टाइम है. ओपन क्लोज्ड principle. Now, if you look at this, if you see the words open close principle, so single responsibility principle, class should have single responsibility, that you know that. Now, what is this? अभी जो मैंने किया, that also follows this. Open close principle. What do you see? अरे बोलो. कल जाके मैं और 10 टाइप के पेमेंट टाइप्स लिख सकता हूं. नेट बैंकिंग हो गया, पेटीएम वॉलेट हो गया, अमेजॉन वॉलेट हो गया, और और कोई हो सकता है डिफरेंट टाइप का पेमेंट, राइट? सो कोड इज ओपन फॉर एक्सटेंशन. आप जितने चाहिए उतने पेमेंट्स टाइप ऐड कर सकते हो, एंड क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन. मतलब क्या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं? पेमेंट पेमेंट ही आपको प्रोसेस करना है. पेमेंट तो प्रोसेस करना है आपको, रिसिप्ट जनरेट करना है, वैलिडेट करना है, ये तो काम करना ही है, ये आपको करना ही है. सो दैट इज क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ओपन फॉर एक्सटेंशन. आप और भी पेमेंट टाइप्स ऐड कर सकते हो. दिस इज द थिंग. व्हाट अबाउट एल स्टैंड्स फॉर? लिस्को सब्स्टिट्यूशन रूल. इसका मतलब क्या होता है? केस नंबर 3 याद है किसी को, इनहेरिटेंस का? We can hold child class object using perfect. Now, fourth and 5, I want you to look into. मैंने ऑलरेडी बताया आपको, इनवर्जन ऑफ कंट्रोल,
एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोल सकते हो। अब इसको टाइम है और इट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इसको अभी के लिए लेटर ऑन यू कैन थिंक ऑफ दिस। क्लियर है? अब मेरे तीनों क्लासेस कंपाइलेशन एरर दे रहे, व्हाई? Now, this is the assignment for you guys today. You will understand these solid design principles. I'm going to ask you one of you tomorrow. पांचों के पांचों you will, पहले तीन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इंटरफेस खत्म होने के बाद वी विल कवर दिस लिटिल बिट, अभी तो नहीं है, बट यू विल ट्राई एट होम। सो व्हाई दीज क्लासेस आर गिविंग मी एरर? एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड नहीं करे। बोला इंप्लीमेंट करो मेथड्स को। विच मेथड्स वी हैव टू इंप्लीमेंट मैंडेटरीली? abstract methods. ये भी right. I'm going to write this. So I'm going to write different logics for different. अभी के लिए हमारा प्रिंट इन चल रहा है, लेकिन बाद में आपको एक्चुअल लॉजिक लिखना पड़ेगा। सिंपल। तो मैंने क्या किया? नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर मी टू ओवरराइड ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक, समझे? नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट पेमेंट। ये कैसा है? क्रेडिट कार्ड पेमेंट। So what I have done here, can you tell me? Parent class reference or super class reference and child class object. अब मैंने तीनों मेथड कॉल करी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। समझे क्या क्या किया? So we are able to do this. I am putting this so that you can this is your assignment for the day. ठीक है, एंट्री पर्सपेक्टिव के लिए पूछा जाता है। दिस इज समथिंग थोड़ा 2-3 years एक्सपीरियंस उनको पूछा जाता है, बट आप भी सीख लो। क्लियर यहां तक? आर यू टू मेक सेंस अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास? नाउ यू, अभी इतना देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाई आर वी यूजिंग दिस। व्हाई टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? इतना देखिए तो आपको समझ में आया होगा कि व्हाई वी आर डूइंग दिस।
क्लास को देखो एक बार इसको। अब मुझे बताओ यहां पर जो लॉजिक है रिसिप्ट जनरेट करने का, कोई भी पेमेंट प्रोसेस करो आपको रिसिप्ट तो जनरेट करना ही है। नाउ व्हेन वी विल गो विद द अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर बहुत ज्यादा क्लासेस है, मल्टीपल क्लासेस, और वो कुछ लॉजिक शेयर कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग सम लॉजिक एंड सम स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने? अब जनरेट रिसिप्ट का लॉजिक हर मतलब कोई भी पेमेंट टाइप करो आपको चाहिए चाहिए। सो आई एम गोइंग टू यूज abstract classes when we have multiple classes which are sharing the some logic, ठीक, that is one thing। और इसमें कुछ मेथड्स मैंने इनकम्प्लीट है, एंड सम मेथड्स मस्ट बी इंप्लीमेंटेड, सम मेथड्स मस्ट बी इंप्लीमेंटेड। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो व्हाई वी आर व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस, some part is common, some part is something must be different for everyone। क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेस कैसे करना है ये अलग होगा, क्रेडिट कार्ड कैसे पेमेंट करना है उसका अलग होगा। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक। सो व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई वी आर यूजिंग टू अचीव abstraction, that is something। ये तो ठीक है abstraction अचीव करने के लिए, बट वी हैव इंटरफेस आल्सो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो व्हेन वी हैव मल्टीपल related classes share common logic, तब हम यूज करेंगे abstract class। some part must be यूनिक, यूनिक मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से इंप्लीमेंट करेगा। क्लियर? ऐसा हो सकता है ना, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो आपको पता होता है कि ये काम कैसे करना है, इमीडिएटली करना है, और कुछ काम हो सकता है कि आपको नहीं पता है कैसे करना है। फॉर दैट व्हाट यू डू, यू डोंट गेट स्टक, उसको पार करते हो, उसको बाद में करेंगे, ऐसे कुछ करते हो आप। सिमिलरली जब मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने स्टार्ट कर रहा हूँ, डे वन पे ही मुझे नहीं पता होगा ना सब कुछ लॉजिक। अब मुझे बताओ मैं पेमेंट की किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप के। अब मुझे नहीं पता है आज के तारीख पे अमेजोन का पेमेंट कैसे हम प्रोसेस करेंगे, अमेजोन वॉलेट का, हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसेस दैट पेमेंट, वी डोंट नो दैट। तो उस केस में हम उसको लॉजिक आज लिख सकते हैं क्या? नहीं है, कुछ लॉजिक है जो हमें नहीं पता है, कल जाके और कोई जियो वॉलेट आ गया, जियो और कुछ जियो का कुछ आ गया पेमेंट प्रोसेस का कुछ और कुछ अलग टाइप ऑफ पेमेंट आ गया। सो हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? वो नहीं पता है। एनएफसी थ्रू कैसे पेमेंट एक्सेप्ट करना है मुझे नहीं पता है अभी। कल जाके ऐसा भी हो सकता है मोबाइल बस ऐसे उधर टच करो पेमेंट हो जाए, पता नहीं और कुछ टेक्नोलॉजी आ जाए। एनएफसी में होता है वैसे कुछ, इफ यू नो, कार्ड में भी होता है टैप करो, बट और कुछ टेक्नोलॉजी आए कल जाके, उसका लॉजिक तो मुझे आज नहीं पता होगा ना, राइट? बट कुछ लॉजिक है जो मुझे पता है। सो आई नो सम पार्ट बट आई डोंट नो सम पार्ट, देन गो विद द abstract क्लास। क्लियर है? There are certain problems with the abstract class also. What problems you see? हम इंटरफेस क्यों पढ़ने जा रहे हैं? There must be something not working with the abstract class, right? By now, what all things you observed, Akshay?
क्या क्या? इंटरफेस से इंटरफेस से क्या बोले फिर से एक बार? समझाने में। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख पा रहे हैं ना? अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख पा रहे हैं। आर वी राइटिंग द लॉजिक हियर? बट आप बोल रहे हो कि सब क्लास में लिख रहे हैं। बट यहाँ पर तो हमने हाइड किया ना, आर वी राइटिंग द लॉजिक हियर? नो, व्हाई आर वी नॉट राइटिंग द लॉजिक? मालूम नहीं है अभी। दैट्स द रीजन वी आर नॉट राइटिंग, सो वी आर एबल टू हाइड दिस। अब कल जाके इसको कैसे बोल सकते हैं? अभी थिंक ऑफ दिस। लेट मी राइट अ लॉजिक। अब यहां पर देखो, मैं एक मेथड लिखने वाला हूं। आई एम गोइंग टू राइट अ मेथड इनसाइड दिस। नाउ, very good question. Now look at this method. So his question is, how are we hiding the implementation, right? Can you see this method? इसमें कौन सा पेमेंट आ रहा है? इफ यू लुक एट दिस, वेदर इट इज क्रेडिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, अमेजन, कोई भी टाइप। लेकिन मुझे कौन सा सब क्लास चाहिए? कौन से टाइप का? पेमेंट टाइप का। और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आई वांट? सब टाइप पेमेंट। उसका कोई भी सब क्लास चलेगा। कैन वी होल्ड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग पेरेंट क्लास रेफरेंस? केस नंबर 3। तो यहाँ पर पेमेंट नाम का रेफरेंस है, उसमें कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट चलेगा? चाइल्ड। अरे चाइल्ड, पेरेंट तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो चाइल्ड टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो। अब यहां पर आपको देख के समझ में आ रहा है कौन सा पेमेंट है? जो भी सब टाइप होगा, कोई भी हो सकता है, एक हो सब टाइप हो सकता है, दो, जो भी टाइप का ऑब्जेक्ट दोगे उसका मेथड कॉल होगा। तो यहां पर आपको आईडी तो कर रहे हो आप। डू वी नीड टू नो हाउ पार्ट? हम डायरेक्टली बस मेथड कॉल करेंगे किसका? अब यहां पर मेरा कोई इफेल्स इफेल्स कुछ है क्या इधर? किसका मेथड कॉल होगा? जो टाइप का ऑब्जेक्ट दोगे उस टाइप का। जो टाइप का ऑब्जेक्ट दोगे उस टाइप का
मेथड कॉल होगा। अगर आपने डेबिट कार्ड पेमेंट भेज दिया तो डेबिट कार्ड की पेमेंट मेथड कॉल होगी, प्रोसेस पेमेंट। अगर यूपीआई का ऑब्जेक्ट भेजा तो यूपीआई वाली की मेथड कॉल होगी। तो यहाँ पर इफ एल्स हट गया आपका पूरा, और ये आपका मतलब आप देख रहे हो वी आर एबल टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर? देयर आर क्लियर प्रॉब्लम्स विद द abstract क्लास। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? आप बोले कि मुझे 100% मेथड्स कैसे चाहिए? इनकम्प्लीट। So abstract class does not support 100% abstraction. Why? As it can have concrete methods as well. तो 100% आपको abstract method नहीं मिलेगी। यहां पर क्या है ऑप्शन? आप नॉन abstract मेथड भी लिख सकते हो, इंस्टेंस मेथड भी लिख सकते हो। तो 100% abstraction नहीं है यहाँ पर। सब कुछ आप हाइड नहीं कर रहे हो यहाँ पर। We are not hiding all the methods. We are hiding some and we are not hiding some. Right? दूसरा, abstract class does not support what is that? मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। मेक सेंस? Now with that discussion what we have seen so far, can you tell me what is abstract class, what is abstract method, what all things we can write inside abstract class, can we create object of an abstract class, how do we call constructor of an abstract class, how do we create subclass of an abstract class, what happens if you create a concrete class subclass, abstract class subclass है तो what are the problems with the abstract class, why are we using abstract class, what are the problem with the abstract class? Are you able to make sense? बहुत ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है इसमें, कल आपने अगर रिवाइज किया होगा। इतना डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा होगा तो यू विल अंडरस्टैंड इंटरफेस फ्लुएंटली। सो व्हाट इज एन इंटरफेस? जैसे व्हाट इज अ कॉन्क्रीट क्लास, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सिमिलरली व्हाट इज एन इंटरफेस? इनकम्प्लीट क्लास इंटरफेस इज ए it is a fully abstract, it is a fully abstract class which is incomplete, which is incomplete। अब इनकम्प्लीट है मतलब उसका ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली आप नहीं क्रिएट कर सकते। कैन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ an incomplete class? No, we cannot create। Next, interface is also type of a class, it is also type of a class, it is also type of a class, it is a fully abstract class, it is a type of a class which is fully abstract class, fully abstract class and incomplete। It is a type of a class which is fully abstract and incomplete, which is fully abstract and incomplete। Make sense? तीन टाइप के क्लास, कॉन्क्रीट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस। ठीक। अब ये फुली एब्स्ट्रैक्ट है मतलब व्हाट डू यू थिंक व्हाट मस्ट बी हैपनिंग? Yes, how do we create that?
we use a interface keyword, then interface name, और इसके अंदर क्या लिखोगे, जो भी कंपोनेंट्स लिखो, यू आर गोइंग टू राइट कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर क्या लिख सकते हैं। तो व्हाट ऑल कंपोनेंट्स, जैसे हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखा था, सो व्हाट ऑल कंपोनेंट्स वी कैन डिफाइन इनसाइड एन इंटरफेस। ठीक, क्या लिख सकते हैं। अब टू जावा 7, इसमें क्या लिख सकते थे आप। टिल जावा 7 तक ओनली abstract methods, nothing else. Till Java 7 we could write only abstract methods. Till Java 7 हम लिख सकते थे बस ओनली abstract methods, ओनली abstract methods। तो हम मोस्टली जावा यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज जावा 8, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। फ्रॉम जावा 8 क्या क्या लिख सकते हैं। हाँ, सॉरी, बोलो बोलो। हाँ, समझा नहीं, बोलो बोलो बोलो, हाँ रे बोलो, डोंट वरी। इंटरफेस, अरे इंटरफेस के अंदर क्या लिख सकते हो, बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर ये इंटरफेस का क्लास जैसी है, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं। तो जावा 7 तक यहां पर बस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। फ्रॉम जावा 8, सॉरी, तो आप वेरिएबल्स लिख सकते हो क्या। वेरिएबल्स लिख सकते हो आप, बट वेरिएबल्स आर बाय डिफॉल्ट, लिख सकते हो आप, बट वो बाय डिफॉल्ट कैसे वेरिएबल्स होते हैं। पब्लिक स्टैटिक फाइनल, आप लिख सकते हो, यस, बट हाउ आर दे। Public static final, public matlab they can be accessed from anywhere. What about static, they can be accessed using class name. Do we need to create object to access them? No. What is final, once you assign the value we cannot change the value or reassign the value, right? Then what about methods, what type of methods we can write. By default methods are public पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट मेथड कैसा है, पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट, इवन दो यू डू नॉट राइट, ऐसे ही आपने लिख दिया, सो दिस इज पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट, ध्यान रखना। फ्रॉम जावा 8 ऑनवर्ड्स वी कैन डिफाइन स्टैटिक मेथड्स इनसाइड द इंटरफेस। एक और नया कॉन्सेप्ट है, वी कैन डिफाइन डिफॉल्ट मेथड्स। अब ये डिफॉल्ट मेथड तुम जो सोच रहे हो वो डिफॉल्ट नहीं है, ये अलग डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर वाली नहीं है, वो कुछ अलग है। वेरिएबल्स, जावा 7 तक क्या सीन है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट। जावा 8 से थोड़ा सा आपको चीजें, वेरिएबल लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट दे आर
public, static, final. Then methods are by default public, abstract. नया क्या है? पहले भी abstract लिख सकते थे हम मेथड, अभी भी लिख पा रहे हैं. नया और दो टाइप के मेथड हम लिख पा रहे हैं, स्टैटिक मेथड्स एंड डिफॉल्ट मेथड. तो स्टैटिक मेथड एक्सेस करने के लिए abstract मेथड तो हम वैसे भी कॉल नहीं कर सकते, उसका सब क्लास में ही जो भी होगा. स्टैटिक मेथड्स हाउ आर यू गोइंग टू कॉल? क्लास में. So default method we will discuss about that. What is that? Then what about the inner classes? So by default nested classes की बात करते हैं. By default nested classes are इतना ही लिख सकते हैं. क्या बताया मैंने कि आप एक इंटरफेस के अंदर जावा 8 से क्या क्या लिख सकते हो. वेरिएबल्स कैसा है? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल. मेथड्स पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट. स्टैटिक मेथड भी लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो. डिफॉल्ट मेथड जावा 8 का कॉन्सेप्ट है, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं. नेस्टेड क्लासेस बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक. अब यहां से आपको समझ में आ रहा हो कि हम क्या नहीं लिख सकते. So what is not allowed? What is not allowed in an interface? क्या नहीं लिख सकते हैं? Instance members and static block also we cannot write. Instance members में क्या क्या है आपके पास? Instance variable, instance method, constructor, instance block and inner classes. ये कुछ आप नहीं लिख सकते. इंटरफेस क्या है? फुली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इनकम्प्लीट क्लास है. Why are we using that? To achieve abstraction. What is the syntax to create an interface? इंटरफेस कीवर्ड, इंटरफेस का नाम और कंपोनेंट. तो इंटरफेस के अंदर क्या लिख सकते हैं हम? जावा 7 ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. एंड जावा 8 से वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट कैसा है तुम्हारा? वेरिएबल. तुम एब्स्ट्रैक्ट बोले? नहीं नहीं, एब्स्ट्रैक्ट बोले तुम. पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल. फाइनल मतलब पुष्कर फाइनल. ओके. एंड मेथड्स बाय डिफॉल्ट मेथड्स आर पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट. जावा 8 से क्या लिख सकते हो आप? स्टैटिक मेथड लिख सकते हो, डिफॉल्ट मेथड लिख सकते हो. अभी क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट मेथड क्या है, क्यों लिखा, दैट इज लेटर स्टोरी. वी विल सी दैट. नेस्टेड क्लासेस, पब्लिक, स्टैटिक. क्या अलाउड नहीं? इंस्टेंस मेंबर्स कुछ भी अलाउड नहीं है और स्टैटिक ब्लॉक भी अलाउड नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वंस अगेन. हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, how multiple inheritance is supported through interfaces? So already you know the answer. Can you tell me? So one class can implement more than one interfaces. But how it is possible?
बिकॉज इंटरफेसेस में क्या नहीं होता, इंटरफेसेस डज नॉट कंटेन इंस्टेंस मेंबर्स, इंस्टेंस मेंबर्स नहीं होता, तो इसके लिए किसको कंफ्यूजन नहीं होता है, तो सब क्लास, जो सब क्लास है आपका उसको कोई कंफ्यूजन होगा, won't have any confusion. So let interface I1, I2, A class is there. ठीक, इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, इनर क्लासेस, ये कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नो कंफ्यूजन फॉर दिस क्लास। अब यहां पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यहां पर क्या क्या लिख सकते हो आप, पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स, डिफॉल्ट मेथड्स, इसके अंदर लिख सकता है। अब मुझे बताओ, पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है, तो उसको कैसे एक्सेस करोगे आप? परफेक्ट, कैसे एक्सेस करोगे आप? क्लास नेम से। व्हाट अबाउट स्टैटिक मेथड्स? क्लास नेम। व्हाट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स? अब लेट्स से इसके पास भी M1 मेथड है, लेट्स से इट हैज वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, तो इसको कितनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा? M1 M1 दोनों भी सेम सिग्नेचर है, सेम सिग्नेचर है ना, सेम मेथड है, सेम सिग्नेचर, बॉडी तो नहीं है, तो बॉडी किसको लिखना पड़ेगा? मेथड किसकी कॉल होगी? अरे पेरेंट क्यों कॉल गए, उसका कुछ है ना, एग्जीक्यूट चाइल्ड क्लास की होगी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद द एब्स्ट्रैक्ट मेथड आल्सो। अगर सेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। व्हाट अबाउट डिफॉल्ट मेथड्स? अब डिफॉल्ट मेथड क्या है आपका? इंस्टेंस मेथड ही होता है, उससे पहले हम डिफॉल्ट कीवर्ड लिखते हैं। क्या होता है? इंस्टेंस मेथड होता है, उसके पहले हम डिफॉल्ट कीवर्ड लिखते हैं, तो उस केस में सेम मेथड है तो उसको कंफ्यूजन होगा फिर से। डिफॉल्ट मेथड हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, बाय द वे, डोंट वरी, बट अभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि डिफॉल्ट मेथड कैसे दिखता है, सेम इंस्टेंस मेथड, उसके पहले डिफॉल्ट कीवर्ड होता है। अब दोनों में भी डिफॉल्ट मेथड है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो उस केस में क्या करना पड़ता है वो रिजोल्व करने के लिए, यहां पर भी डिफॉल्ट मेथड है ऐसा कुछ, यहां पर भी सेम डिफॉल्ट मेथड है ऐसा कुछ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट मेथड को करना पड़ेगा ओवरराइड। अब यहां पर उसके पास दो तीन ऑप्शन है, इंटरफेस 1 की भी कॉल करो, इंटरफेस 2 की भी कॉल करो, या खुद का कुछ लॉजिक भी लिखो, तो उसके पास ये ऑप्शन है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर डिफॉल्ट मेथड के केस में, फास्ट हो रहा है स्लो हो रहा है बताओ मुझे, ठीक है, आई मे गो इन ए फ्लो। मल्टीपल इंस्टेंस कैसे सपोर्टेड है यहाँ पर? क्योंकि पहला तो चीज, इंस्टेंस मेंबर्स कुछ भी नहीं है, वेरिएबल जो भी है पब्लिक स्टैटिक फाइनल, वो कैसे एक्सेस करोगे आप? क्लास नेम, यानी इंटरफेस का नाम, स्टैटिक मेथड्स क्लास नेम, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स सब क्लास सेम, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कितने भी इंटरफेस में रहने दो, लेकिन उसको ओवरराइड एक ही बार करना है, तो कॉल किसका होगा? सब क्लास का। सो दैट इज ऑल्सो क्लियर। अब बचा बस कौन सा? डिफॉल्ट मेथड। सो डिफॉल्ट मेथड कैसा डिफॉल्ट मेथड है आपका? सेम इंस्टेंस मेथड, उसके पहले एक डिफॉल्ट कीवर्ड लगाए, उसके पहले डिफॉल्ट कीवर्ड लगा, तो उस केस में क्या करते हैं हम, सेम डिफॉल्ट मेथड दोनों इंटरफेस में है, तो उस केस में हम उसे क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे, और उसके अंदर लॉजिक लिखेंगे कि दूसरा कुछ नया लॉजिक लिखना है, या इसका कॉल करना है, या इसका कॉल करना है, देयर इज ऑप्शन। तो आप बोलोगे इंस्टेंस मेथड क्यों एक्सेस नहीं दिया? इंस्टेंस मेथड जैसी ही है ना ये तो, क्या बोला मैंने? अगर उसको मैं सीधे सीधा इंस्टेंस मेथड बोल देता तो व्हाट विल हैपन?
हाँ, डिफॉल्ट मेथड हम पढ़ने वाले, डिफॉल्ट मेथड कॉन्सेप्ट क्यों आया, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपको पता है कि लेट्स से एक इंटरफेस है, उसके अंदर मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखी है, उसके सब क्लास ने ओवरराइड करी है मेथड, सब क्लास हैज ओवररिडन मेथड। इसके अंदर कुछ मेथड्स थी, 10 साल पहले मैंने ये लिखा था। अब 10 साल बाद इसमें एक इंटरफेस के अंदर नई एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंट्रोड्यूस करी मैंने, तो व्हाट विल हैपन, पहले जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी वो मैंने ओवरराइड कर दी, पहले जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी इसके अंदर सारी मैंने यहां पर ओवरराइड कर दी, ठीक है। और इस इंटरफेस के सब क्लासेस है 1 लाख, समझो, इस इंटरफेस के सब क्लास है कितना, 1 लाख, और 1 लाख जगह पर वो मेथड ओवरराइड हो चुकी है। अब मुझे बताओ, मैंने ऐसा कोई जूनियर डेवलपर आया, उसने एक नया मेथड इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कंफ्यूजन नहीं है, देखो यहाँ पर वंस अगेन हम उसके ऊपर आएंगे डिफॉल्ट मेथड लेटर ऑन, बट अभी के लिए समझो मेरा एक इंटरफेस है, उसका सब क्लास बना है, तो इंटरफेस को, जब इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इंटरफेस कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो जो भी सब क्लास बनेगा उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, मैंडेटरी। तो उसने पहले एक मेथड जो थी 1 लाख सब क्लासेस में, सबने ओवरराइड करी वो एक मेथड, अब इंटरफेस के अंदर एक और नई मेथड इंट्रोड्यूस करी जो इन लोगों ने ओवरराइड नहीं करी, तो क्या होगा, सारे क्लासेस में एरर आना चालू हो जाएगा, सब क्लासेस में 1 लाख, थिंक ऑफ देयर आर 1 CR क्लासेस, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो आप तो नया मेथड इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते एज पर जावा 7। फिर जावा 8 ने क्या किया कि तुम नया मेथड तो इंट्रोड्यूस करना है, दोनों एक साथ होना चाहिए, नया मेथड भी इंट्रोड्यूस करेंगे और हमारा सब क्लासेस भी रोएंगे नहीं, मतलब नया मेथड तो जरूर इंट्रोड्यूस करना है, बट अगर नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, सारे सब क्लासेस में ओवरराइड करना पड़ेगा, अगर ओवरराइड नहीं करेंगे तो एरर आएगा। अब इन्होंने जावा ने क्या किया कि इनको तकलीफ नहीं देंगे, जो उनका हो गया हो गया, अब नया मेथड अगर इंट्रोड्यूस किया मैंने तो उसको मैं बनाऊंगा डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट का मतलब होता है दिस इज द डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन, अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखता तो सबको इंप्लीमेंटेशन लिखना पड़ता, so instead of them what I am doing now, I am making that method as default, so that is a default implementation for all of the subclasses, जिसको वो implementation नहीं चाहिए वही लोग उसे ओवरराइड करे, जिसको वो implementation नहीं चाहिए वही लोग उसे ओवरराइड करे, बाकी लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो क्लासेस ब्रेक नहीं होंगी। ये जावा 8 का नया फीचर, हम उसको देखेंगे, अभी के लिए इतना डिटेल में नहीं जाते, बट अभी के लिए क्या क्या पढ़ा हमने, इंटरफेस क्या है, इंटरफेस में क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे सपोर्टेड है थ्रू इंटरफेसेस, तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहां किसी को कोई क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, कैन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस, नो, सिंपल, वी कैनॉट क्रिएट, क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इनकम्प्लीट है, सिंस इट इज एन इनकम्प्लीट, सिंस इट इज declared incomplete, declared incomplete, ठीक, ओके। अब यहां पे ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी क्रिएट अ सब क्लास ऑफ एन इंटरफेस, हाउ टू क्रिएट अ सब क्लास ऑफ एन इंटरफेस, कैसे करते हैं, implements keyword, so we use implements keyword,
So let's see this in action. So I have this interface. We create that. So interface, let's say payment service. So I'm going to write an abstract method. Now look at this. अब क्या क्या before that let's validate इंटरफेस के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं. What is happening? I'm getting an error. I'm getting an error. Now, is it instance variable? देख के तो लग रहा है कि इंस्टेंस वेरिएबल है, बट इट इज नॉट. व्हाई? बिकॉज इसके पहले आपने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट है. ये क्या बोल रहा है? पब्लिक मॉडिफायर इज रिडंडेंट फॉर इंटरफेस मेंबर्स. आप हटा दो, हमने ऑलरेडी वहां पर ये ऐड कर दिया है. दिस इज नॉट ए इंस्टेंस वेरिएबल, दिस इज स्टैटिक वेरिएबल. समझे? नाउ वेरिएबल्स आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल. नाउ यहां पर कैसी है मेथड्स ये? इफ यू लुक एट दिस, अरे even though you do not write, it is already added for you. Now, from Java 8 onwards, what we can do? From Java 8 onwards, we can write static methods. So I can write public static void display static method. Right? This is how. And fourth, from Java 8 onwards, we can write default methods. Now, instead of static, I will mark it as default. आपको लग रहा होगा कि ये तो इंस्टेंस मेथड जैसी है, but this is not an instance method. If I remove this, this becomes an instance method, and that is not allowed. What about classes? By default, nested classes are public, static. Even though do not write. Clear? So what is allowed? Makes sense? Now let me write another interface I2. Now, what is not allowed? Instance members are not allowed.
Now if I write this is a constructor, right? Not allowed. Instance block, not allowed. Static block, not allowed. Simply remember this. This is something not allowed. क्लियर है क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है. देन इंटरफेस कैसे क्रिएट करना है, उसमें क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, दैट वी नो. नेक्स्ट, हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट एन सब क्लास ऑफ एन इंटरफेस. So what we use? ये कैसी मेथड है? Abstract. क्या किया मैंने? This is how we create a subclass. Parent class reference, child class object. Simple. हाँ हाँ सब क्लास में. अरे कॉन्क्रीट क्लास है ना ये. So this is how we create. ठीक. नाउ जैसे आपने abstract क्लास के लिए पढ़ा, तो what happened? When one concrete class implements another interface, then it is mandatory to override all abstract methods from, otherwise compile time error. As per the inheritance, abstract methods will be inherited into concrete class, then it will give you compile time error. When one abstract class implements another interface, then it is optional to override all abstract methods from in abstract class को कोई दिक्कत नहीं है ना. abstract class can hold abstract methods, but concrete class के लिए क्या जरूरी है? concrete methods होना, override करना मैंडेटरी है. ये रूल जैसे abstract class के लिए था, यहां पर इंटरफेस के लिए भी है. इजी? मेक सेंस? तो मोस्टली हम क्या यूज करने वाले हैं? इंटरफेस. सो वन लास्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन abstract class and interface? Difference between abstract class and interface. Now I would like to ask you, you will tell me किधर गया वो? हाँ. So let's try to understand what is the difference. We have abstract class and we have interface also. What is it? First, एक्चुअली है क्या ये? कैसे क्रिएट करते हैं हम abstract क्लास को? क्रिएटेड यूजिंग
abstract keyword. How interface is created? ठीक है, this is one difference you could tell. How do we create a subclass? How to create subclass? कौन सा कीवर्ड यूज करते हो आप abstract क्लास का सब क्लास क्रिएट करने के लिए? By using extends keyword. By using implements keyword. पहला यहाँ पर abstract कीवर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरफेस कीवर्ड यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग extends कीवर्ड एंड implements कीवर्ड. क्यों यूज करना चाहिए हमने? क्या क्या बोलो बोलो बोलो. पार्शियल पार्शियल इंप्लीमेंटेशन कुछ पता है कुछ नहीं पता है. अब्स्ट्रैक्ट में हमें कुछ नहीं पता है. सो तो ऐसे बोल सकते हो टू अचीव partial abstraction, to achieve 100% abstraction. Next, multiple inheritance. Is multiple inheritance supported? Multiple inheritance supported? No? Yes. अब abstract क्लास में क्या लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो, इंटरफेस में क्या लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते. So what is allowed? Everything from plus abstract methods. यहां पर सॉरी जावा 7 तक क्या लिख सकते हो? ओनली abstract methods. जावा 8 से variables will be public, then methods the by default public abstract. static methods लिख सकते हो आप. then nested classes by default nested classes are public static. Check what is it, how to create subclass, why to use multiple indents, what is allowed. अब कॉमन लॉजिक कुछ लिख सकते हो आप यहां पर. कैन वी राइट सम कॉमन लॉजिक? यस. कॉमन लॉजिक नहीं लिख सकते आप यहां पर. कब यूज करना चाहिए हमने? आपको पता है कि सम लॉजिक कॉमन है, सम लॉजिक कॉमन एंड सम डिफरेंट. यहां पर सारा सब कुछ ऑल द लॉजिक कौन लिखेगा? ऑल द लॉजिक इज डिफरेंट अक्रॉस सब क्लासेस. यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, जावा 8 का डिफॉल्ट मेथड्स. कैन वी डिफाइन डिफॉल्ट मेथड्स? आंसर इज नो. यस.
Clear? So we started with abstract class. What is abstract class? That we discuss. How do we create that? What is the syntax? What all things we can write? What all things we cannot write? Is multiple intent supported through that? What is the difference? Like why we should go with abstract class? Some little bit of solid pattern. Then talked about what are the problems with the abstract class. Then we directly started with the interface. What is interface? What all components we can write as part of an interface? What is not allowed? How do we like support multiple inheritance? Can we create an object? No. How to create a subclass? Then we talked about difference between questions. Now there are a lot of things that we'll be discussing next class. हम देखना start करेंगे. So एक simple सा है marker interface. So what is marker interface? अभी के लिए बस समझ लो. Interface which is empty. क्या है? So empty interfaces are called as marker interfaces. इंटरफेस के अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसे इंटरफेस को हम क्या बोलेंगे? मार्कर इंटरफेस. Now there are some already predefined marker interfaces are there that you should be aware of. Predefined marker interfaces. Serializable, clonable, auto closable. Example कोई भी इंटरफेस, let's say इंटरफेस क्या है? मार्केट इंटरफेस बहुत सिंपल सा है. व्हाट इज एन मार्केट इंटरफेस? इंटरफेस विच इज एम्प्टी इज अ मार्केट इंटरफेस. अब बोलोगे कि आप ये क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज नेसेसरी? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. मार्कर इंटरफेसेस आर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पस. ध्यान रखना, ये आपको भी पूछा जाएगा. सो व्हाट आर मार्कर इंटरफेसेस? खाली इंटरफेस को हम बोलेंगे मार्कर. कोई प्रीडिफाइंड मार्कर इंटरफेस का एग्जांपल सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल, ऑटो क्लोजेबल, ये कुछ और भी होंगे बहुत सारे, लेकिन इतना अभी के लिए ठीक है. और इसका यूज क्या है? मार्कर इंटरफेसेस आर यूज फॉर मार्किंग पर्पस. व्हाट इट मींस? वेरी सिंपल. जैसे आप कोई क्लब पब गए, आप कभी गए होंगे, रेस्टोरेंट गए होंगे. हाँ, ये देख रहे हैं, शक्ल से समझ में आ रहा है. चलो, तो वहां पर आपको एक ऐसे बैंड देते हैं. या कोई थीम पार्क गए होंगे, वहां पर आपको ऐसे कोई बैंड देते आपको एंट्री के टाइम. कॉन्सर्ट्स में भी देते. हाँ, कॉन्सर्ट्स में भी देते, राइट? सो व्हाई दे आर गिविंग दिस बैंड? जैसे कोई बारबेक्यू नेशन, वहां पर कुछ होता है कि आपको ऐसे ग्रीन देंगे या रेड देंगे. ग्रीन मतलब वेज वाला है, रेड मतलब नॉन वेज वाला है, ऐसे कुछ देते हो. सो व्हाई व्हाई दे आर गिविंग दिस? दे आर मार्किंग आपके ऊपर. दे आर पुटिंग ए मार्क कि ये वाले ऑब्जेक्ट्स जिनके पास ये मार्क है, इनको क्या देना है? बस वेज देना है. ये रेड वाले, इनको नॉन वेज देना है. So why are we doing this marking? To have some kind of processing logic, to filter out the objects, to filter out the objects, or marking करेंगे हम. इंटरफेस कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप का है. Let's say this particular object is of
दिस पर्टिकुलर टाइप, तो हम ये वाला लॉजिक करेंगे। अगर ये वाला लॉजिक, ये वाला टाइप का ऑब्जेक्ट है, लेट्स से जिसके पास रेड टेप वाला है, तो उसको ये वाला सर्विस, जो ग्रीन वाला है उसको ये वाला सर्विस। सो सिमिलरली इन द प्रोग्रामिंग आल्सो व्हाट वी डू, वी मार्क एन ऑब्जेक्ट। So if this object is of this particular type, then do this. If this object is of this particular type, do this. Example, अभी टेक्निकल टर्म में सीरियलाइजेशन क्या होता है? सीरियलाइजेशन मतलब जो जावा ऑब्जेक्ट है उसको फाइल में सेव करना। व्हाट इज सीरियलाइजेशन? ऑब्जेक्ट को फाइल में सेव करना। व्हाट इज डी सीरियलाइजेशन? फाइल में से ऑब्जेक्ट को रीड करना। सो सीरियलाइजेशन, डी सीरियलाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सीरियलाइजेशन मतलब ऑब्जेक्ट को फाइल में सेव करना। तो जावा जब प्रोग्राम चल रहा होगा तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके पास, हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी देयर। तो जावा इज सेइंग आई एम गोइंग टू सेव ओनली ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑफ टाइप सीरियलाइजेबल। क्या? यू आर आस्किंग जावा टू सेव द ऑब्जेक्ट, बट जावा इज सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू सेव एन ऑब्जेक्ट एनी टाइप ऑफ, आई एम गोइंग टू सेव ऑब्जेक्ट ओनली ऑफ टाइप सीरियलाइजेबल, राइट? तो एग्जाम्पल, मुझे स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मुझे फाइल में सेव करना है। सो कैन आई सेव दैट डायरेक्टली? अभी मेरा ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम ये कुछ है यहां पर। अब ये ऑब्जेक्ट मुझे सेव करना है। सो आई आस्क जावा, बॉस स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इसको नाम दिया मैंने 1 abc। assume that constructor is there. If you want, I can write the constructor student। मुझे लगता है एआई इंटीग्रेट करना पड़ेगा इधर, थोड़ा थोड़ा फास्ट काम हो जाएगा। So what do we write inside the constructor? I want to assign the values. This dot id equal to id, this dot name equal to name। Perfect। अब ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ठीक। Now I'm asking Java, boss, you save this object. I have this object s1, इसके अंदर कुछ वैल्यू है 1 abc। अभी प्रोग्राम बंद होगा, मेरा ऑब्जेक्ट भी चला गया, बट व्हाट आई वांट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू बी सेव्ड इन अ फाइल। ठीक है, ये मेरा फाइल है कोई। आई एम आस्किंग जावा सेव दिस ऑब्जेक्ट, सेव ऑब्जेक्ट इन फाइल। यस, सीरियल, इसको हम क्या बोलेंगे? सीरियलाइजेशन, सीरियलाइज। ठीक। अब फाइल में से ऑब्जेक्ट फिर से रीड करना, उसे हम बोलते हैं डी सीरियलाइजेशन। हम ये पढ़ेंगे आगे जाके, बट अभी के लिए बस डी सीरियलाइजेशन। ठीक। अब जावा क्या बोल रहा है? आई एम नॉट गोइंग टू सेव एनी ऑब्जेक्ट। जावा सेइंग किसको एंट्री मिलेगा अंदर? जिसके पास बैंड है, मार्क है। जैसे आप वोटिंग करने जाते हो, आपको वोटिंग के दिन आप फोटो डालते हो ना, सेल्फी, क्यों डालते हो वैसे? हो चुका है, फिर से नहीं आना चाहिए उधर, राइट? सो वंस डन, दैट इज, सो विच ऑब्जेक्ट्स विल बी प्रोसेस देयर? जिनके पास मार्क हो उनको एंट्री नहीं है वहां पर, दैट इज व्हाट। कुछ जगह पर प्रोसेसिंग लॉजिक है, दैट इज द प्रोसेसिंग लॉजिक। सो व्हाट इज द प्रोसेसिंग लॉजिक वी आर लुकिंग हियर? सो आई वांट टू सेव दिस ऑब्जेक्ट इन द फाइल, I want to serialize this object in the file, but what Java is saying? I am not going to save this object. Why? Because this object is not of type serializable. तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट को कौन से टाइप का बनाना है? Serializable. So how do I create this object of type serializable?
हाउ कैन आई डू दैट? पेरेंट क्लास रेफरेंस, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास रेफरेंस, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है? सीरियलाइजेबल। तो इसको सीरियलाइजेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या करना पड़ेगा? टेल मी। इंप्लीमेंट्स अब बन गया ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का? सीरियलाइजेबल। और सीरियलाइजेबल कैसा है इंटरफेस? बस ऐसा कुछ इंटरफेस खाली है। बट जैसे ही उसको ये ऑब्जेक्ट वो चेक क्या करेगा? इफ दिस ऑब्जेक्ट इज टाइप, तो इंटरनल क्या चेक करेगा वो जावा? इफ आपका जो भी ऑब्जेक्ट है रेफरेंस, रेफरेंस इज इक्वल इक्वल टू ऑफ टाइप, if reference is instance of serializable, then only save। ऐसा कुछ जावा इंटरनली करता है। तो समझ में आया मार्कर इंटरफेस स्टोरी? ये प्रोसेसिंग लॉजिक होगा, इस बेसिस पर होगा ये। समझे मार्कर इंटरफेस? Now, tomorrow we are going to cover Java 8 features. So I want you to guys, please practice abstract class interface. So tomorrow we'll be covering Java 8 features. इधर गया, हाँ इधर। So tomorrow agenda is Java 8 features. कल हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये Java 8 का तो है नहीं, बट एनोनिमस क्लास क्या होता है कल पढ़ेंगे हम। एनोनिमस क्लास क्या होता है, फिर जावा 8 के फीचर्स। सबसे पहले उसमें डिफॉल्ट मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स, फंक्शनल इंटरफेस, देन लैम्बडा एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंस, इफ टाइम परमिट्स, ऑप्शनल, और ये स्ट्रीम एपीआई हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। स्ट्रीम एपीआई दैट विल बी कवर्ड आफ्टर कलेक्शन फ्रेमवर्क, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है। सो स्ट्रीम एपीआई वी विल कवर आफ्टर लिटिल बिट ऑफ स्ट्रीम एपीआई। दिस इज व्हाट द एजेंडा इज टुमारो। ये कल हम पढ़ेंगे, ये लेटर, ये कुछ फीचर्स है हम कल पढ़ने वाले। सो डोंट मिस दिस। जावा 8 फीचर्स में हमने स्विच अपग्रेड्स भी देखा ऑलरेडी। इफ यू नो, इफ यू रिमेंबर, वो उसी टाइम पे है, बट दैट वी ऑलरेडी कवर्ड, सो विल नॉट राइट इट हियर। दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मिस मत करना। आगे जाके हम ऐसे कुछ बहुत सारा कोड लिखेंगे, तो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जिसने किया जावास्क्रिप्ट। अपने एरो फंक्शंस, इफ यू रिमेंबर क्या होता है, समझे आप? जिनका जावास्क्रिप्ट हो चुका है उनको, ठीक। सो विद दैट लेट्स स्टॉप।